I think we have done. Wait, let me check. We have started with chapter number 1, and we have done good amount of. And we have also done this components of financial system. Um, Financial markets are divided into 7 parts. The first one was capital market, if I'm not wrong. And there are 2 types of capital market, primary and secondary. We have done the types of capital market also. After that, we have money market, which is short-term money market, which is always short-term. Interbank, which is between 2 banks, which is between banks. Okay, also known as short-term interbank market, because it can be done overnight also for one day or for a period of 1 year. Foreign exchange market, you already know, and we have already discussed it. If suppose you want to invest in dollars, you pay rupees in against dollars. Therefore, it would be into a market which is known as foreign exchange market. Commodity, I've already explained you. Agricultural primary commodity, primary products, just such as wheat, cotton, sugar, are known as soft commodity. Okay, and the hard one, which is gold, oil, rubber, it is in the form of raw material. Okay, so there are 2 types of commodity markets. I mean, the commodity market has been classified into 2 types of commodities, hard and soft. Okay, we have done this also. Derivatives market, derivatives. agree. Okay, I'll be little louder. अभी अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है? Okay. So derivative market में आपने बताया था, there is an underlying asset. There is an underlying asset on which, I mean, on the basis of underlying asset, you are able to deal in the market. The instrument derive the value mostly from the underlying asset. Whatever instrument, financial instrument you have, that its value will be derived from an underlying asset. याद है आपको मैंने example दिया था, there is a farmer who wants to sell their crop, seasonal crop. तो उन्होंने 2 महीना पहले से ही डिसाइड कर लिया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया होलसेलर्स के साथ कि आपने इतना इतना स्टॉक ये टाइम पे इस डे पे इतने इतने प्राइस में खरीदना है. उस टाइम पे प्राइस क्या होगा वो नहीं हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट में जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब फ्यूचर के लिए आप आज ही पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि इतने प्राइस पे आपने खरीदना है. ठीक है. इंश्योरेंस मार्केट क्या होता है, जैसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं किसी अपने रिस्क को कम करने के लिए, अपना रिस्क को कम करने के लिए हम ये पॉलिसी खरीदते हैं. कौन सी? इंश्योरेंस पॉलिसीज. Therefore, this market comes into picture, insurance market. Okay, this was completely, these are the types of financial market. So what we were doing? Financial market. Now third is financial instruments. What are these instruments? These are the instruments. Otherwise, see, if you don't have these instruments, with what you will deal in the financial market? You should have something to deal, to purchase and sell, no? If you don't have things to deal in, things to purchase and sell, so what is the use of the marketplace? Because you have an instrument, therefore market comes into picture, no? Instrument plays a very important role. Okay, so what is financial instrument? Keep it in mind, financial instrument. It is not a musical instrument as such. It is a financial instrument, such as treasury bills, commercial papers, public deposits, fixed deposits, life insurance policies. Okay, whatever you invest in, purchase from the financial market has become financial instrument. So the financial system deals in the financial services.
You all deal with the financial services if you are dealing with the financial system. And claims which are known as financial instruments. Of course, what are the financial instruments? These are the financial services only which are known as instruments. Whatever services you provide, government provides you investment in treasury bills. If you invest in government bonds, it is financial instrument. If you invest in a particular company's public deposits, it is a financial instrument. If you take up a life insurance policy from a particular company, such as Kotak Mahindra life insurance policy, है ना, तो मैंने एक कोई भी कंपनी की पॉलिसी खरीद ली, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, अपने कार का इंश्योरेंस करा लिया, अपने घर का इंश्योरेंस करा लिया किसी भी कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो लोग मुझे क्या दे रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं ना, तो दैट बिकम्स माय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज दे आर गिविंग मी सर्विस, सम काइंड ऑफ सर्विस जिसको मैं फ्यूचर में चल के क्लेम कर सकती हूँ. ठीक है, अगर मेरा नुकसान हो भी गया ना तो भी मुझे उसका पैसा भर के मिलेगा, जिसको मैं क्लेम कर सकती हूँ. आपने बैंक में एफडी कराई हुई है, तो क्या आपकी एफडी आपको कभी वापस नहीं मिलेगी? नहीं, आप जब चाहें वो आप वापस ले सकते हैं. दैट इज नोन एज क्लेम. एनी टाइम, एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू कैन क्लेम दैट अमाउंट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. समझ आया? तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल एसेट्स, या फिर इसका नाम होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या नाम हो सकते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं. So financial instruments can be classified as primary and secondary instruments. Now, important characteristics of financial instruments are, what are the important characteristics? If I talk about financial instrument, can you transfer that instrument? Suppose you have shares of a particular company. You have purchased shares of Reliance Limited. Can you purchase the shares? Yes. Can you sell it off to another person, transfer it? Yes, you can transfer it. So it is transferable. Those shares have liquidity option. What is liquidity? Liquidity means you will never face shortage of cash. Cash will never be short. आपको कैश की कमी कभी नहीं होगी, उसको कहते हैं लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब हमेशा कैश होगी आपके पास. तो यस होगी. आप समझो आपके पास शेयर्स आपने खरीदे रिलायंस कंपनी के, अब आपके पास है ना कैश नहीं है, आपको कैश चाहिए. किसी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आ गया जिसमें आपके पास आपको ना कैश चाहिए, नहीं है आपके पास, आपका मनी खत्म हो गया, फंड्स खत्म हो गए, कैपिटल खत्म हो गई, तो अब आपको शेयर्स में से पैसे मिल जाएंगे. हाँ, शेयर्स को बेच दो, आपको पैसे मिल जाएंगे, कैश मिल जाएगी, मनी मिल जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा, फंड्स मिल जाएंगे, कैपिटल मिल जाएगी, है ना. समझ रहे हैं आप सारे में क्या बोल रही हूँ? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? आप जब चाहें शेयर्स को बेचकर उसमें से कैश ले सकते हैं. मतलब कभी भी आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है. उससे मार्केटेबिलिटी होगी. मार्केटेबिलिटी मतलब अगर आपने खरीदा, आपको अच्छा लगा, तो आप किसी को एडवाइस करोगे ना, आप भी खरीदो, आप भी खरीदो. मैंने आप लोगों को एडवाइस किया ये कंपनी के शेयर्स खरीदो, बहुत अच्छे हैं. आपने भी इन्वेस्टमेंट करना था, आपके पास 5 लाख रुपए पड़े, तो मैंने आपको एडवाइस किया ना, ये कंपनी के शेयर्स खरीदो, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदो, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट खरीद लो, बहुत फायदा होगा, 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, है ना. तो मार्केटेबिलिटी होती है ना इसकी. एक को अच्छा लगेगा तो दूसरे को पता चलेगा, फिर वो खरीदेगा, फिर कोई और खरीदेगा. दिस वे मार्केटेबिलिटी होगी उसकी. ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब जितने भी मेरे ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड होती है. मतलब आपको अलग से कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑलरेडी जितना आपने भरा है ना, जितने में आपने परचेज किया ना शेयर्स को, उसी में सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की. रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. हाँ, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है, कोई भी धोखा देके निकल सकते हैं. मतलब अगर कंपनी डूब गई तो फिर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो गया ना, मेरा पैसा डूब जाएगा.
पर ये बहुत कम केसेस में होता है, आपको देखकर पैसा लगाने का ना कंपनी अच्छी है कि नहीं है। मैच्योरिटी एंड टैक्स एग्जम्पशंस, आपको मैच्योरिटी भी होती है कि 2 साल तक आपको मैच्योरिटी है, मतलब 2 साल में आपको इतना इतना पैसा आपका वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत कहते हैं ना हम, इंटरेस्ट के साथ। टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। अगर आपने LIC खरीदी, आपको पता है LIC कंपनी से आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, आपकी इनकम में से आपको एग्जम्पशन मिलता है, मतलब टैक्स आपको कम भरनी पड़ती है। अगर आपने LIC, गवर्नमेंट की जो LIC कंपनी है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उधर से अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा, पॉलिसी खरीदा, तो आपकी इनकम में से आपको टैक्स कम, मतलब जो टैक्स हम पे करते हैं ना गवर्नमेंट को, वो कम हो जाती है, उसका बर्डन, उसका लायबिलिटी कम हो जाती है, उसे कहते हैं टैक्स एग्जम्पशन। मतलब टैक्स को आप ऐसे समझो, आपकी टैक्स कम हो जाएगी, फ्री हो जाओगे, आप टैक्स के बर्डन से फ्री हो जाएंगे। आया समझ में? तो अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, देखो उसके नाम दिए हुए, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, अगर उनको पैसा चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए, शेयर्स नहीं इशू करने हैं, नहीं शेयर्स नहीं इशू करने, तो क्या करना है, तो फिर पता है कैसे वो रेज करते हैं पैसा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, COD कहते हैं इसे शॉर्ट में, COD। तो COD क्या होता है, वो ना एक आपको बोलेंगे आप है ना COD में इन्वेस्टमेंट करो, मेरे पास 5 लाख रुपए का, मैं आपको ना 12% इंटरेस्ट दूंगी हर साल, आप मेरे पास 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो। तो आप तो बोलोगे यस अच्छा है, 5 लाख रुपए डालो, एवरी ईयर आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? जितना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उतना अच्छा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ओके, तो COD है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, जब कोई भी कंपनी, मतलब कॉर्पोरेट कंपनी जो होती है ना, उनको फंड्स चाहिए होते हैं, तो वो COD इशू करते हैं। COD मतलब एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, जिसमें लिखा होता है ये आपने पैसा मुझे दिया है, इतना इतना इंटरेस्ट मैंने आपको देना है, और इतने इतने पीरियड के लिए, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसे भी हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। पॉलिस पोस्टल सेविंग इंस्ट्रूमेंट सच एज, पोस्टल सेविंग मतलब पोस्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट का पोस्टल है ना, पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट का है, ये पता होगा आपको। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पोस्टल सेविंग की, तो उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। आप सोचते हो प्राइवेट कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कल को प्राइवेट कंपनी डूब गई और मेरा भी पैसा डूब गया तो, ठीक है। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, you want to invest in government securities. So these are the types of government securities: NSC, national savings certificates, किसान विकास पत्र, KVP बोलते हैं इसे, किसान विकास पत्र। It is a type of investment, government investment, in which suppose you invest your 2 lakhs rupees, that is the safest, what to call as investment, safest investment, क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन सेफ होता है ना वो, इट इज सेफ। यस, आई यू अंडरस्टैंडिंग? मंथली इनकम सर्टिफिकेट्स, ये भी पोस्टल का ही एक पार्ट है, मंथली इनकम सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब आ जाइए फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अब फाइनेंशियल सर्विसेज ना बहुत सारी होती है, बहुत। देखो, सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज होंगी तब, देखो आप सर्विस, अगर आपका सर्विस होगा, कोई एक सर्विस आपकी होगी, समझो आप सर्विस दे रहे हो इंश्योरेंस की, आप सर्विस दे रहे हो इंश्योरेंस की, तभी तो उसमें प्रोडक्ट होगा ना इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट मतलब पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी, है ना। जब तक आप सर्विस नहीं दोगे, तब तक इंस्ट्रूमेंट कहाँ से पिक्चर में आएगा। तो देखो, एक से कड़ी दूसरी जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज
है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है तब तो फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट में करोगे क्या आप जब इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होंगे तो, प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगे तो, है ना, समझ आया। तो आपस में ये सब लिंक्ड अप है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एज अ ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन के, एजेंट बन के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दे गिव यू सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ, आई मीन फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको देते हैं ना वो लोग, उन जो आपको देते हैं ये सर्विसेज, दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बिकॉज वी डोंट नो कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, वी डोंट नो विच टाइप ऑफ शेयर्स शुड आई बी परचेजिंग, I don't know where should I invest my 5 lakhs rupees in FD, in shares. Okay, I don't have any idea about that. किस में इन्वेस्ट करूं मुझे आइडिया नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरमीडियरीज। क्या कहते हैं, इंटरमीडियरीज। एंड दोज इंटरमीडियरीज help you out to invest your money into proper area through which you can earn maximum amount of returns. Those intermediaries help you out, but they are it is a service that you are giving you. इट इज अ सर्विस, आपको वो सर्विस दे रहे हैं। आपको नॉलेज नहीं है कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदो, रिलायंस के, टाटा के, इन्फोसिस के किसी बैंक के शेयर्स खरीदूं, कौन से शेयर्स खरीदूं, मुझे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब आपको आइडिया नहीं है तो आप जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। अब वहां जाएंगे किसी एक्सपर्ट के पास जिसको नॉलेज है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते हैं उसे। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आपका पैसा आपको एडवाइस देगा यहाँ यहाँ लगाना चाहिए, तो आपको सर्विस दे रहा है ना, फ्री में तो नहीं देगा, उसके अगेंस्ट में आपसे कमीशन चार्ज करेगा, फीस चार्ज करेगा, ठीक है। तो आपने उससे क्या लिया, सर्विस लिया, फाइनेंशियल सर्विस। अब वो फाइनेंशियल सर्विस देगा, आपको एडवाइस देगा कि आपका जो 5 लाख है ना ये इसमें लगाइए। किस में लगाइए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाइए। कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स में पैसे लगाइए। नहीं LIC खरीद लो, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लो, वो ज्यादा सेफ है, उसमें अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। चलो लाइफ इंश्योरेंस में पैसा नहीं लगाना है तो गवर्नमेंट की किसान विकास पत्र में पैसा लगा दो, उसमें इंटरेस्ट कम है। आपको क्या चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा, उसमें इंटरेस्ट कम मिलेगा लेकिन सेफ्टी बहुत है, पैसा डूबेगा नहीं, गारंटी है। समझ आ रहा है। तो आपको वो सर्विस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए, उसको नॉलेज है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए। अब जहां पैसा लगा है ना उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपने कुछ तो खरीदा होगा ना फाइनेंशियल मार्केट में से, आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने आपको खरीद के दिया होगा क्या, कुछ तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें आप कुछ तो डील कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, शेयर्स को खरीदना है, बेचना है ना। समझ आया। पॉलिसी मैच्योर करानी है कि पॉलिसी खरीदनी है, वो भी वही देख लेगा, कितने साल की पॉलिसी है, कितना प्रीमियम भरना पड़ेगा, वो देख लेगा, लेकिन भरना आपने है। वो आपको एडवाइस देगा, वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज देगा। समझ में आया सर्विसेज और इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। यस, चैट बॉक्स में लिखिए समझ आ रहा है कि नहीं। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, बहुत, देखो कुछ कुछ के नाम भी दिए हुए हैं, सब तो यहाँ पे नहीं लिखे होंगे पर कुछ कुछ के नाम दिए हुए। देखो मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, कंसल्टेंसी, डिस्काउंटिंग, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। जैसे बैंक पे जाते हैं हम बिल्स डिस्काउंट कराने, वो भी तो बैंक हमको एक सर्विस दे रही है ना, बिल्स डिस्काउंटिंग करके। आपने सीखा है 12th में, है ना, बिल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है वो आपने सीखा है। अंडर राइटिंग मतलब आपके शेयर्स हैं पर आप बेच नहीं सकते हो उसको, आपको पता नहीं, आइडिया नहीं कहाँ बेचूं, कितने में बेचूं आपके शेयर्स कंपनी के। लेकिन अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटर आपको शेयर्स बेच कर देता है आपके अच्छे प्रॉफिट पे, मतलब अच्छा आपको रिटर्न्स मिलेगा उसमें से। ठीक है, आगे बढ़े।
बस आपको 2-3 एग्जांपल्स लिखने और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है। तो अब हमने अब तक क्या किया, 4 पिलर्स थे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हमने पहले पहले सीखा। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, उसमें हमने 7 टाइप सीखे, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है। लाइकवाइज हमने 7 टाइप सीखे। उसके बाद हमने किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अब हमने किया फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करने वाले को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको एडवाइसेस देते हैं, आपको आपका पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बहुत इजी है, वेरी इजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ना, सिस्टम की बात कर रही हूँ, 4 पिलर्स की बात नहीं कर रही हूँ। फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पिलर्स होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पिलर or those pillars. I'm talking about functions of the financial system. Now, what is the role performed by the financial system? What is the function? Okay, first function is pooling of funds. Now, suppose if a financial system is not there, फाइनेंशियल सिस्टम होने की वजह से ही तो पूलिंग ऑफ फंड्स है। पूलिंग ऑफ फंड्स मतलब सपोज यू हैव एक्स्ट्रा सेविंग्स इन योर हैंड एंड यू हैव केप्ट इट इन योर लॉकर इनसाइड योर होम। नाउ इट इज नॉट used by you, neither it is used by anybody else. It is not used by you, neither it is used by anybody else. Therefore it is known as a blocked money. Blocked, पैसा ब्लॉक हो गया ना, लॉकर में पड़ा है। क्या वो बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? नहीं। क्या आप वो यूज कर रहे हो? नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, वो अभी नहीं यूज करनी है मुझे, फ्यूचर में मे भी काम आएगा, तब के लिए मैंने रखा है, ठीक है। लेकिन क्या किसी और को यूज आ रहा है? नहीं। तो इसको कहते हैं ब्लॉक्ड मनी। तो पूलिंग ऑफ फंड्स मतलब फाइनेंशियल सिस्टम है जो लोगों की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में क्या फर्क है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। सेविंग्स में कुछ पैसा बढ़ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट में पैसा बढ़ता है। मतलब बचा के रखना, इन्वेस्ट मतलब, हाँ, इन्वेस्टमेंट मतलब, फिर से बोलो, इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं बाहर फाइनेंशियल सेविंग मतलब यस कि जो हम घर पे पैसा जमा करते, जी उससे बिल्कुल, हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेविंग का मतलब जो हमने घर पे पैसा रखा है जिसमें से कुछ पैसा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमने अपने पैसे घर से निकाल कर, कोई भी बैंक में इन्वेस्ट करना हाँ या वेरी गुड, बैंक में डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, इंश्योरेंस खरीद कर, या फिर किसी कॉर्पोरेट कंपनी को लोन दे दिया, या फिर कॉर्पोरेट कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट खरीद लिया। किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके का इंस्ट्रूमेंट कोई भी खरीदूं मैं, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे पैसा बढ़ेगा। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ये फर्क होता है। तो सेविंग्स ऑफ पीपल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपका पैसा यूज में भी तो आएगा। फिर आपने बिजनेस को दे दिया, बैंक को पैसा दे दिया ना, तो बैंक को तो पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, बैंक चलेगी कैसे, पैसा चाहिए ना, ठीक है, समझ आया। तो इसे कहते हैं पूलिंग ऑफ फंड्स। यस मतलब मैम। yes, your funds are transferred from savings to investments. Capital formation, what do you mean by capital formation? Capital formation means same thing, your money is not blocked. You use this money in investment. You buy certain things from banks, from corporative firms, from corporate firms, from insurance companies, and therefore what insurance company, banks, I mean they further invest their money. Your money is further invested by these banks and insurance companies. Where they will invest, maybe they give loan to somebody who actually needs to open up new business, who needs for financial stability, who needs to purchase a new house, or who maybe need to get an education facilities, but they don't have enough funds, therefore they come to take up the loan.
because they take the loan from the bank, they will have to pay the interest also, because they take the loan, no, they will have to pay the interest. Suppose they are paying interest of 15%, so bank will keep 8% of interest with them, 7% will be given to you. Why 7% will be given to you? Because your money is invested by the banks, so you also should be benefited from that, right? You should also be getting benefits. Therefore banks give you interest as well. तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा ब्लॉक नहीं हो रहा है. कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एक जगह से निकल के दूसरे जगह जा रही है जहां पे एक्चुअली वो फंड्स की नीड है. फॉर्म हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है, फॉर्मेशन हो रहा है. ब्लॉक नहीं हो रहा है आपके कबर्ड में, आपके आपके लॉकर में, उसको आप ब्लॉक नहीं कर रहे हो. वेयरएज उसको आप क्रिएट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो पैसों को, और उस जगह लगा रहे हो जहां एक्चुअली उन फंड्स की नीड है. आया समझ में? आवाज ब्रेक हो रही है. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका पैसा ब्लॉक नहीं है, आपने अपना पैसा निकालकर कहीं सही जगह पे उसको इन्वेस्ट किया, समझो बैंक में इन्वेस्ट किया, तो बैंक क्या करेगी आपके पैसों को? बैंक क्या करती है आपके अमाउंट को? वो फिर से री इन्वेस्ट करती है, और री इन्वेस्ट करती है तो उन्हीं अमाउंट को वहां लगाती है जहां एक्चुअली में वो फंड्स की नीड है. यस यस मैम. ओके. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन में आपको बता रही थी कि कैपिटल ब्लॉक नहीं हो जाएगा, आपका कैपिटल सही जगह इस्तेमाल होगा, वो बता रही थी मैं आपको. वो समझा आपको? सबको ये पॉइंट कैपिटल फॉर्मेशन की समझ में आई? कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स आपका मनी, आपका पैसा, फंड्स ब्लॉक नहीं होते हैं, वो सही जगह जाकर लगते हैं जहां एक्चुअली वो फंड्स की नीड होती है. और इनफैक्ट आप ऐसा करने से आपको भी इंटरेस्ट मिलता है. मतलब कैपिटल फॉर्म होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है या ब्लॉक नहीं हो जाते. आया समझ में? आगे बढ़े. आगे दिया हुआ थर्ड, फैसिलिटेट्स पेमेंट. अच्छा, आपको न्यू मेथड्स ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बड़े कन्वीनियंट मोड्स निकाले गए हैं पेमेंट करने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, चेक के फॉर्म में. आजकल तो मोबाइल वॉलेट्स निकल गए हैं, पेटीएम है ना, जैसे पेटीएम है और जीपे है, ठीक है. तो ये सब भी पेमेंट मोड है ना, फाइनेंशियल सिस्टम का इजी कर दिया है, मतलब कन्वीनियंट कर दिया है कि आप घर बैठे बैठे आप कुछ भी खरीद कर पे कर सकते हैं. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपके पास शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, या किसी कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो यू विल नेवर फेस शॉर्टेज ऑफ कैश. You will never face shortage of cash. Always there will be liquidity. Liquidity मतलब there will never be a shortage of cash. Because कभी भी आप अपने financial instruments को, shares को, debentures को, bonds को, mutual funds को convert कर सकते हो cash में. At any point of time, you can convert these financial securities, financial assets, financial instruments into cash by selling them off. आप उनको बेच दो तो आपको क्या मिलेगी? उसके अगेंस्ट में कैश मिलेगी. ओके. नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स. सपोज you want an investment for short period of time, 1 year. Is it available? Yes. Financial system says yes, it is available with me. 1 year का आप एफडी करवा दो, 1 year का आप पब्लिक डिपॉजिट खरीद लो मुझसे, 1 year का. ओके, 1 year का लोन दे दो आप मुझे, तो ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट हुई ना, शॉर्ट टर्म. अच्छा, कोई लोगों को चाहिए होती है लॉन्ग टर्म नीड्स, मतलब जैसे आप 25 साल की LIC खरीद लो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो 25 साल की, है ना, तो आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स फुलफिल होंगी कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी. मे बी आज से 50 साल बाद जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी ना, लॉन्ग टर्म. आज से 50 साल के बाद में देख रही हूँ.
आ रही है बात समझ में? तो फाइनेंशियल सिस्टम का ये भी रोल है, ये फंक्शन है कि आपको आपके दोनों नीड्स को फुलफिल करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। रिस्क फंक्शन आपका जो रिस्क है ना वो कम कर देता है, आपको प्रोटेक्ट कर देता है रिस्क से। जितने भी आपके लाइफ में रिस्क हैं, हेल्थ के रिस्क हैं, इनकम के रिस्क हैं, उनको आपसे प्रोटेक्शन देता है। कौन? फाइनेंशियल सिस्टम, है ना? प्रोटेक्शन ही तो देता है। इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस खरीद लिया, तो जब आपका कुछ नुकसान होगा, कार आपकी चोरी हो गई, घर जल जाता है, समझो कभी घर को आग लग जाती है, तो उस टाइम पे आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका पैसा भर के देती है ना, तो वो रिस्क कम हो जाएगा। आपको सपोज घर घर का नुकसान हो गया समझो 3 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2.5 लाख तो भर के देगी, तो 2 लाख तो भर के देगी, तो उतना रिस्क आपका कम हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये रिस्क फंक्शन को भी कम करती है, मतलब रिस्क को भी एसोसिएट करके देती है कि ये एक और फंक्शन है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंशियल सिस्टम प्ले करता है। बेटर डिसीजंस, आपको ना आइडिया नहीं है कि मेरे फंड्स कहाँ लगाने चाहिए, मुझे आइडिया नहीं है, तो आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हेल्प करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि आपको कहाँ पे आपके फंड्स चूज करके देते हैं, आपको बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिखा हुआ है। ये सब मैं जो बोल रही हूँ ना, आप बैठ के बाद में उसको पढ़ेंगे ना तो आपको याद आएगा, हाँ मैम ने ये पॉइंट बोली थी। देखो सेकंड लाइन लिखी हुई है, दिस हेल्प्स द इन्वेस्टर टू कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड चूज द बेस्ट वन एंड चूज द बेस्ट पोर्टफोलियो फॉर योर इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ। आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए, कहाँ पे प्रॉपर कौन सी एरिया बेस्ट एरिया है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, जहाँ पे मुझे बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आपको गाइड करता है। आया समझ में? तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही तो होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिसमें वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना? समझ आया? नेक्स्ट इज फिनेंसिस गवर्नमेंट नीड्स ऑल्सो। सिर्फ हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं करता है, गवर्नमेंट को भी अगर पैसा चाहिए, लोन चाहिए, पब्लिक की हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, एजुकेशनल फैसिलिटीज गवर्नमेंट को देनी है, वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है गवर्नमेंट को, तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा, फाइनेंस, कैपिटल, फंड्स। तो गवर्नमेंट को भी अगर शॉर्टेज हो जाती है, समझो एग्जाम्पल फंड्स की, तो वो भी तो फाइनेंशियल सिस्टम से पैसा उठा सकती है, फाइनेंशियल मार्केट में आ सकती है ना पैसा उठाने के लिए, लोन लेने के लिए, या आपको बोलेगी, लोगों को बोलेगी फाइनेंशियल सिस्टम में ना मैंने ट्रेजरी बिल्स डाल दी है, कमर्शियल पेपर्स डाल दिए हैं, खरीदो उनको, मैं अच्छा खासा इंटरेस्ट दूंगी, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो करते हो वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ही तो आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, तो गवर्नमेंट इनको बेचकर, बॉन्ड्स को बेचती है तो आपसे क्या लेती है? पैसा लेती है। एक टाइम के बाद आपको दे देगी गवर्नमेंट, लेकिन अभी के लिए तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया ना, उन्हीं पैसों को वेलफेयर एक्टिविटीज में यूटिलाइज करती है। तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग नीड्स है ना वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, किससे? फाइनेंशियल सिस्टम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी पूरी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एक्चुअली फंड्स की नीड थी वहां फंड्स मिल गए उनको, नया बिजनेस सेटअप करने के लिए नीड थी फंड्स की, आपने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, समझो बैंक पे पैसे लगाए, तो बैंक वालों ने वहां पे ये पैसे पहुंचाए जहां ये फंड्स की नीड थी। किनको फंड्स की नीड थी? मे बी एक बंदे को, जिसको मे बी अ पर्सन नीड्स दीज फंड्स टू स्टार्ट अप अ न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसको इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उसका। समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगी ना, इकोनॉमी डेवलप होगी, है ना? समझ आ रहा है? उसको बिजनेस करके अर्न करने का मौका मिलेगा, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको फाइनेंस चाहिए ना, तो फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस कहाँ से लेगा? बैंक से। बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? उन लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो दिस इज द वे इकोनॉमी हमारी डेवलप होगी। मैंने ये सिर्फ एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के फाइनेंशियल सिस्टम में। आया समझ में? जो लोग पढ़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है,
पढ़ाई करने के लिए. वी आर लकी इनफ टू हैव पेरेंट्स हु थिंक अबाउट अस, who really sacrifice for us to pay, and they pay so big amount, the huge amount for our education. We are very lucky, but those think about those children who are deprived of the basic education also. उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती है. तो ऐसे लोग जो लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, तो लोन लेंगे, पैसा होगा तो लोन लेंगे ना, बैंक के पास पैसा होगा तब लोन लेंगे. तो बैंक क्या करती है, आपकी अमाउंट को उन लोगों तक पहुंचाती है जहां पे लोगों को एजुकेशन मिल सके. तो एजुकेशन मिलेगी तो पॉवर्टी कम होगी. कैसे? क्योंकि वो आगे चल के कमा सकेंगे ना, एजुकेटेड बन जाएंगे तो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, है ना. जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, पॉवर्टी कम होगी. समझ आ रहे? तो इकोनॉमी डेवलप होगी ना. समझ आ रहे कि नहीं? यस. विशाल प्लीज आप म्यूट करो, आपका अनम्यूट है. कुछ बोलना हो तभी सिर्फ अनम्यूट कर सकते हैं. समझ आया? मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप. यस मैम. ओके गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. इंस्टीट्यूशनल सेटअप. अभी इसमें क्या चीज दी हुई है मैं आपको बताती हूँ. 11:50 हो गया. आपके लेक्चर का टाइम कब तक है वैसे? 11:50 तक है मैम. ओके, तो फिर हम लोग है ना ये कल शुरू करेंगे, ठीक है. आपको समझा हम लोगों ने आज जो किया? कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. नो मैम. आप है ना, सुनो एक मिनट, आप डाउट नहीं है ना? वेरी गुड. लेट मी वेट, आई अनाउंस यू वन थिंग.